ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا آپ لوگ سینیریو لے لینا, ٹھیک ہے. لاسٹ منتھ کا جو تھا نا, ہم نے پڑھا ہوا ہے, آپ سے ہم آگے جا چکے ہیں. تو آج ہم اس کا ایکسیڈنٹ والا جو پارٹ ہے, سیکشن ہے, وہ پڑھ رہے ہیں. پہلے 2 سیکشن ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو آپ لوگ ان کو گروپ میں ہم نے شامل کیا ہے نا, 2 بندوں کو. تو یہ آپ شیئر کر دینا سارے اس میں سینیریو. ہاں گروپ میں شیئر کر دیں گے نا آپ. تو آپ نے یہ پھر اسٹڈی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. زوم ان کروں, زوم آؤٹ کروں, ٹھیک ہے. آؤٹ کرو یہ کو نا یار, وہ سائڈ میں چلا جاتا, دیکھ رہے ہیں آپ. تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیں, اس کو تھوڑا سا. یہ نہیں پھر آ رہا ہے نا, اس کو بس زوم ان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ پورا پڑھا جا سکے. اب یہ ایکسیڈنٹ والا جو ہے نا سیکشن آج ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں توجہ کریں, دا ایکسیڈنٹ. اب اس سینیریو میں جو کچن کرافٹ آرگنائزیشن ہے, اس کا جو اونر ہے, یہ تو آپ کو پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ زیادہ پرجوش ہے اور زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے سیل میں. اس کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا, ان کے کنسرن کو سالو نہیں کرتا. صرف ایسی سچویشن میں ان کا ساتھ دیتا ہے جو ان اوائڈیبل مطلب ایشوز ہوں. ادروائز بس وہ کہتا ہے بس تم احتیاط کیا کرو. یعنی کہ ایون اس بندے کی یہ سوچ ہے کہ راستے میں اگر کیچڑ بھی ہے تو بس تم جو ہے نا اپنے پاؤں اور یہ خیال کر کے جو کیچڑ کو نہیں ہٹانا. اس حد تک اس کے ساتھ کیا اس کا پور انٹرسٹ ہے. ہاں نیگیٹو کلچر ہے, یوں سمجھے یہاں پر نا, پراپر نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر جو حادثہ ہوتا ہے, اس حادثے کے بارے میں, ایکسیڈنٹ کے بارے میں یہاں بات کریں گے. لیٹر دیٹ ڈے the workers have finished repairing the damaged render and have started painting. اب انہوں نے جو ہے نا وہ جو تھا ڈیمیج جگہ تھی اس کی ریپیئرنگ کی اور پھر پینٹنگ سٹارٹ کر دی. Workers B decide that they will need more paint than expected and has to collect from the warehouse while worker C continues working outside. ورکر بی نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں مزید پینٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے, and has to collect it from the warehouse while working C continuous working outside. جو ورکر سی ہے وہ مسلسل باہر کام کرتا ہی رہا. ورکر بی lowers the scissor lift. سیزر لفٹ کیا ہوتا ہے, آپ نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں نئے لوگ. سیزر لفٹ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جو گراؤنڈ سے ہائٹ پر کام کرنے کے لیے. تو اس نے ورکر بی نے لوور کیا سیزر لفٹ کو اینڈ سٹیپس آؤٹ, اس سے باہر آ گیا. ایز ورکر سی از ریزنگ دا سیزر لفٹ بیک انٹو پوزیشن. جبکہ جو ورکر سی ہے وہ بیک پوزیشن میں اس کو مزید اوپر بڑھا رہا ہے, ریزنگ اوپر کر رہا تھا. اسی دوران they shout over the noise of the traffic to worker B. ورکر جو بی ہے وہ وہاں اس کو جو ٹریفک ہے وہاں پر شور بھی تھا, نیز بھی تھا بہت زیادہ, اس نے اس کو شاؤٹ کیا. they asked them to hurry. اس نے اس کو کہا جلدی کرو, as working in the heat is unbearable. کیونکہ ہیٹ میں کام کرنا, گرمی میں کام کرنا ناقابل برداشت ہے. and to throw to them
a bottle of drinking water that is on the ground. उसने कहा जो है ना यहाँ पर एक पानी की बोतल फेंको जो ग्राउंड पर थी, जमीन पर थी, मेरी तरफ फेंको पानी पीने के लिए. वर्कर बी थ्रोज द बॉटल, वर्कर बी ने उसकी तरफ वो बॉटल फेंक दी. बट ट्रिप्स on a loose paving stone which affects their aim. अब वो एक नीचे जो है ना लूज एक पत्थर पड़ा था जो फर्श के ऊपर लगे होते हैं, वो लूज पड़ा हुआ था, यानी कि उसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत थी. उससे क्या हो गया, वो ट्रिप हो गया. जैसे कोई एक उखड़ा पड़ा हो, बंदा ऐसे जाता है, देने की कोशिश कर रहा था और ट्रिप हो जाए इस तरह से, तो उससे वो ट्रिप हो गया. ट्रिप होने से क्या हुआ, उसका वर्कर्स, हाँ, और वो अपना उसका जो एम है, मतलब जो काम कर रहा था उसका मुतासिर हुआ. वर्कर सी ओवर रीचेस टू कैच द बॉटल. वर्कर सी उस बॉटल को कैच करने के लिए ओवर रीच, जिस जगह पे खड़ा था उससे ज्यादा ऊपर गया. एक मिनट. ओवर रीच टू कैच द बॉटल लीनिंग अगेंस्ट द सीजर लिफ्ट गेट. जो सीजर लिफ्ट का गेट था उसके साथ वो लीनिंग, मतलब क्या होता है, इस तरफ टेक लगा, जाके बिल्कुल करीब जाके उसके साथ लगा. और द गेट क्लैप्स फेल्स, गेट फेल हो गया, खुल गया, यूं समझे, क्लैप्स फेल्स. द गेट स्विंग्स ओपन एंड द वर्कर्स फॉल. और फिर वर्कर नीचे गिर गया. जब गेट खुला तो नीचे गिर गया. नैरोली मिसिंग अ पासिंग पेडेस्ट्रियन. बड़ी मुश्किल से, मतलब उसके नीचे से जो बंदा गुजर रहा था उससे, यानी कि वो मिस हुआ, बच गया, बंदा नीचे वाला बच गया, लेकिन वो नीचे गिर गया. दे लैंड ऑन देयर साइड, वो अपनी ही साइड पर गिरा. ऑन द कंक्रीट रोड बिलो, नीचे क्या था, कंक्रीट का रोड था. दे हैड ओनली रेज द सीजर लिफ्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन दे फेल. दे हैड ओनली रेज द सीजर लिफ्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन दे फेल. जब वो गिरा तो उसने थोड़ा सा ही उसको ऊपर किया था, सीजर लिफ्ट को. वर्कर बी रशेस इनटू द रोड टू हेल्प. जो वर्कर बी था वो उसकी हेल्प के लिए रोड की तरफ दौड़ा. एट द सेम टाइम अ कार इज ट्रेवलिंग डाउन द रोड एट अ हाई स्पीड एंड द ड्राइवर हैज टू स्वीयर टू अवॉइड हिटिंग द वर्कर्स. अब उसमें क्या हुआ, एक उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी भी आ रही थी, कार भी आ रही थी. ड्राइवर ने उसको बचाने की कोशिश की वहां से कि उसको हिट ना हो जाए, हिट से अवॉइड करने के लिए. वर्कर सी इज शॉक्ड बाय द एक्सीडेंट एंड देयर शोल्डर बिगिंस टू हर्ट. वर्कर सी इज शॉक्ड बाय द एक्सीडेंट एंड देयर शोल्डर बिगिंस टू हर्ट. वर्कर सी का जो है ना हादसा हुआ और उससे क्या हुआ, उसका कि कंधा थोड़ा सा हर्ट हुआ, चोट लगी उसको, यूं समझे आप. सो वर्कर बी टेक्स देम डायरेक्टली इंडोर टू एम्प्टी रेस्ट एरिया टू सिट एंड काम डाउन. वर्कर बी जो है ना उसको डायरेक्टली एक अंदर वाले खाली रेस्ट एरिया में ले गया और उसको कहा कि खामोश रहो. द ओनर नोटिसेस, जो ओनर था उसने ये नोटिस किया, देम सिटिंग डाउन एंड आस्क व्हाई दे आर नॉट वर्किंग. उनको उसने बैठा हुआ देखा और उनसे पूछा कि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने वर्कर बी जो सीनियर वर्कर था उसने उसको, यार बस खामोश रहो, ज्यादा शोर शराबा ना करो, ऊंग फूंक भी ना करो, जिस तरह बंदा करता है ना, कर रहा था ना, ये भी उसको ना करने दी, आवाज भी ना निकालने दी, किसी तरीके से भी उसको ओनर को पता ना लग जाए. द ओनर, अच्छा आगे, वर्कर बी फॉलोज द ओनर टू देयर ऑफिस एंड एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन. जो वर्कर बी था वो ओनर को फॉलो करता हुआ उसके ऑफिस में गया, उसके पीछे ऑफिस में गया और उसको वजाहत की कि यह वाकया कैसे हुआ. द ओनर टेल्स देम दैट इट वाज ऑब्वियसली देयर ओन फॉल्ट एंड टू बी मोर केयरफुल. तो जो ओनर था उसने क्या कहा, बस ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा कसूर है, तुमने ही ख्याल करना था. वो पहले भी इसी तरह उनको कहता था, हर बात में बस तुम ख्याल किया करो, ये जरूरत नहीं है ये करने की, वो करने की. और जब हादसा हुआ तो भी उसने उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया. मतलब पॉजिटिव कल्चर होता है और नेगेटिव कल्चर होता है. तो नेगेटिव कल्चर में क्या होता है, ब्लेम किया जाता है, बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, बस ये तुम्हारा कसूर है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें ध्यान करना चाहिए था. ये नहीं देखते कि भाई इक्विपमेंट फॉल्टी था, पानी उसको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया था,
वेलफेयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, बॉटल में उसको पानी गलत तरीके से दिया जा रहा था। ये सारी चीजें जो थी इनको उसने अपने जिम्मा नहीं लिया, बल्कि जो उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, जो वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा था, उसने उनके ऊपर, वर्कर के ऊपर ही डालने की कोशिश की। उसके बाद आ जाता है the owner has told them that it was obviously their own fault and to be more careful. They tell them to go back outside so that the equipment is not left unattended. उसने उनको कहा कि वो बाहर जाएं, जो इक्विपमेंट है उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें। मतलब उसको ये ख्याल नहीं था कि यार इन लोगों को कोई फर्स्ट एड चाहिए, कोई इनका ट्रीटमेंट करना है, नहीं नहीं, बस तुम बाहर जाओ, जाओ, इक्विपमेंट जो है ना अनअटेंडेड है, रोड के साथ है, तो बस उसको जाके आप ख्याल करो। वर्कर बी रिस्पॉन्ड्स दैट दे नो इट वाज अ मिस्टेक। वर्कर बी ने रिस्पॉन्ड किया कि जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारी गलती है, बट वर्कर सी इज विजिबली डिस्ट्रेस्ड एंड, और वो बुरी तरह से, मतलब यूं कहें कि जख्मी है या हर्ट है। एंड सिंस देयर इज नो फर्स्ट एडर ऑन द शिफ्ट, और शिफ्ट में कोई फर्स्ट एडर भी नहीं है। वर्कर सी शुड बी सेंट टू हॉस्पिटल इन केस दे आर इंजर्ड। अब इंजरी की सूरत में वर्कर को हॉस्पिटल भी भेजना है, उसके लिए उसने भी उसके साथ कोई कॉपरेट ना किया। एन आर्गुमेंट बिटवीन वर्कर बी एंड ओनर डेवलप्स। वर्कर बी और ओनर के दरमियान एक आर्गुमेंट, यानी कि एक बहस और तकरार का तबादला शुरू हो गया। एंड रिजल्ट्स इन वर्कर बी लीविंग वर्क विदाउट परमिशन। नतीजा ये निकला कि जो वर्कर बी है, यूं समझे में गुस्से होकर उसने बगैर इजाजत के ही वर्क प्लेस को छोड़ दिया। टू टेक वर्कर सी टू द हॉस्पिटल, और वर्कर सी को टू टेक वर्कर सी टू द हॉस्पिटल, और वर्कर सी को जो जख्मी था उसको हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद फ्यूरियस द ओनर सेंड्स अनदर वेयरहाउस वर्कर आउटडोर्स टू कंप्लीट द वॉल प्रिपरेशन टास्क एंड टू रिट्राइव द इक्विपमेंट। अब गुस्से में आकर ओनर ने क्या किया, एक और वर्कर को जो वेयर हाउस से था बुला के उसको इक्विपमेंट को जो है ना बहाल करने के लिए या सीधा करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो भी तो गिरा हुआ था ना, एज अपना रोड के साथ ही खड़ा हुआ था, उसको वहां से हटाने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट, रिजल्ट के नतीजे में वर्कर सी है सिग्निफिकेंट ब्रूजिंग टू देयर शोल्डर एंड आर्म एंड रिक्वायर्स टाइम ऑफ वर्क टू रिकवर। नतीजा ये निकला यार, एक्सीडेंट के नतीजे में जो वर्कर सी था उसके कंधे और बाजू के साथ बहुत ज्यादा रगड़ें लगी हुई थी। ब्रूजिंग क्या है, रगड़ें वगैरह लगी हुई थी। एंड रिक्वायर्स टाइम ऑफ वर्क टू रिकवर, अब उसको कुछ वक्त चाहिए था रिकवर करने के लिए। तो ये हमारा सिनेरियो है, हमने उस दिन भी पढ़ा इसको, ठीक है, याद है ना बैक वाला रिजवान? आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम बैठ जाएंगे तो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा इनके बाद, क्योंकि आप लेट आए हैं। जो कुछ आपका रहता है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन इनके बाद, ठीक है। अब आगे इसमें क्या आता है, ये हमने उस दिन स्टडी कर लिया था, हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप। कमेंट ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ओनर्स हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने एडवांस भी डिस्कस की थी। अभी खोल के दिखाएं मुझे, है ये इसको काट दूसरी फोल्डर में। अच्छा, ये हमने काट दिया, कौन से वाले में बताओ मुझे अब? ये वाला, यही है? अच्छा, ये वाला, चलें जी, वो तो देख लेते हैं ना। अब ये हमने जो किया हुआ है, आपने जो किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, तो हमें इससे मदद तो मिल जाती है ना बहुत सारी चीज़ों की। हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल्स जो दूसरा है, अब हमने इसको यार नहीं, आगे कौन से वाला है इसका? नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ जीवन ये वाला है, ये है ना। अच्छा, पहले इसको तो हम कर लेना, नहीं ये तो है ना हमारे पास, समझ गया यार, इसके साथ ये वाला भी दोनों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल्स, व्हाट वाज
unacceptable about the moral approach to managing health and safety when the accident occurred. मोरालिटी के तौर पर हम ये देखते हैं सेफ्टी को किस तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ है मैनेज करना था एक्सीडेंट को, मतलब मोरल्स क्या कहते हैं। सेफ्टी को हम 3 वजूहात की बुनियाद पर मैनेज करते हैं ना, एक होता है मॉरल रीजन, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है लीगल। तो अब यहाँ पर मोरालिटी डिस्कस होगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो मॉरली यहाँ पर उन्होंने ठीक नहीं की। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। इसका कौन सा है, टास्क 2 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं टास्क 2 में, नंबर 1, ठीक है, जो यहाँ पर दी गई है, कल एक और सिनेरियो भी मैं ले आऊंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। द ओनर शोड नो रिस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर वर्कर सी इंजरीज एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद उसको यानी कि कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई उसने उनके के लिए हमदर्दी का इजहार तक भी ना किया, बल्कि उनको क्या किया, ब्लेम किया कि तुम्हारी ही गलती है। The owner blamed him for causing the accident, indicating the death of moral responsibility toward worker safety and welfare. और फिर उसने क्या किया, उनकी जो वेलफेयर वगैरह थी उसके लिए भी कुछ भी नहीं किया। डर्थ कोई इसमें उसने काम नहीं किया, बिल्कुल अदम दिलचस्पी थी उसकी। हाँ, वर्कर सी वॉज नॉट गिवन एनी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बाय द ओनर। ओनर की तरफ से दूसरा पॉइंट यह है कि ओनर की तरफ से जब उसका हादसा हुआ वर्कर सी का, उसको कोई भी फर्स्ट एड प्रोवाइड ना किया गया। दिस कंपेल्ड वर्कर बी टू लीव द वर्क प्लेस एंड कैरी वर्कर सी टू द हॉस्पिटल। इससे क्या हुआ, वो वर्कर जो सी था, वर्कर बी था, वो मजबूर हो गया कि उसने वर्क प्लेस को छोड़ा बगैर इजाजत के और वर्कर सी को हॉस्पिटल ले गया। Not providing on-site first aid treatment is a morally unacceptable approach to health and safety. अब देखें, साइट पर फर्स्ट एड या हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कोई भी फैसिलिटेट प्रोवाइड ना करना, ये मॉरली टोटली अनएक्सेप्टेबल है, गलत है ये बात। मतलब लाजमी हर बंदा चाहता है कि यार अगर मैं किसी एरिया में काम कर रहा हूँ तो अगर हादसात होते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट फर्स्ट एड वगैरह होना भी जरूरी है। उसके बाद है वर्कर्स वर फोर्स टू यूज अ रस्टेड सीजर लिफ्ट दैट वाज मिसिंग सेफ्टी हार्नेसेस एंड legible control markings. Forcing workers to use unsafe equipment is also a morally unacceptable approach to health and safety. अब उनको जो इक्विपमेंट मिला हुआ था वो भी प्रॉपर नहीं था, और फिर ना ही वहां पर सेफ्टी हार्नेस मौजूद था वेयर हाउस में कि वो लोग हाइट वर्क के लिए उसको इस्तेमाल करते। उसके बाद आ जाता है, अच्छा ये टोटल जो है ना टास्क 12 नंबर का है ना, टास्क 2, हाँ 12 नंबर का ये मेरे ख्याल में। 12 नंबर का है तो 10 पॉइंट क्यों दिए भाई उसने? 10 नंबर का होगा ना, हाँ 10 नंबर का है तो इसलिए 10 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 5 नंबर। द ओनर प्रेफर्ड कंपेलिंग द वॉल प्रिपरेशन टास्क क्विकली एंड फोर्स्ड हिज वर्कर्स टू वर्क इन एक्सट्रीम हीट। दिस बिजनेस ओवर सेफ्टी mindset of the owner is also a morally unacceptable approach to health and safety. उसने क्या किया, उसने ये प्रेफर किया कि लोगों को कि वो जो टास्क है वो वर्क फोर्स खुद ही कंप्लीट करेगी उसका, और ये भी मॉरली अनएक्सेप्टेबल है। नहीं देखा उसने मौसम कितना गर्म है, कितना वहां पर शिद्दत है इस हवाले से, जबकि ये काम कंट्रैक्टर के वर्कर को करना चाहिए था। ये आउटसाइड वर्क था, आउटसाइड वर्क उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जबकि उनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेयर हाउस में काम करना है या किचन क्राफ्ट वाले जो मेन बिल्डिंग है उसमें काम करना है। लेकिन उसने उनको इस काम पे लगा दिया, प्रिपरेशन ऑफ वॉल की प्रिपरेशन में लगा दिया। ये भी मॉरली तौर पर अनएक्सेप्टेबल है। फिर है वर्कर सी वाज क्लियरली इन पेन एंड नीडेड मेडिकल असिस्टेंस। वर्कर सी को जो है ना तकलीफ थी और उसको मेडिकल असिस्टेंट मदद की जरूरत थी, बट द ओनर डिड नॉट प्रोवाइड हिम दिस। Instead, he sent another worker to complete the wall preparation task and retrieve the equipment. This disregarded for worker C's health and safety is also a morally unacceptable approach to health and safety.
अब इसने वर्कर सी की इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसने ना तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की, बल्कि उसने एक दूसरा वर्कर भेजकर अपना टास्क कंप्लीट किया और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का कुछ भी ख्याल ना किया। ये रिपीट हो गया है सेंटेंस, पता है आपको? ये रिपीट हो गया है। The owner did not address the increasing rate of near misses and accidents in the warehouse. उसने नियर अपना आपने पहले इस सिनेरियो में पढ़ा था कि नियर मिसेस और एक्सीडेंट इंक्रीज हो रहे थे, इस सिनेरियो में आपने पढ़ा है। उसने इन चीज का नोटिस ही नहीं लिया, हालांकि वर्कर बी ने उसको जाके इन्फॉर्म भी किया था कि यहाँ पर जो रेट है वो बढ़ रहा है एक्सीडेंट का, तो आप भाई इस हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज पर कुछ तवज्जो दें। लेकिन उसने तवज्जो ना दी, बल्कि उसको कहा बस आप लोग खुद ख्याल किया रखो। उसकी एक ही बात थी, कोई भी हादसा हुआ तो भी उसका यही ब्लेम था कि आप लोगों की गलती है, आप लोग ख्याल करें। और जब उनको किसी भी कंट्रोल के हवाले से या फैसिलिटीज की बात की जाती या किसी बजट की या रिसोर्सेज की बात की जाती, तब भी उसका यही जवाब होता था, बस खुद ख्याल किया करो आप लोग। सिंपल, मतलब इसी तरीके से उसका ये बिहेवियर था। उसके बाद है assigning a high risk task such as wall preparation and usage of scissor lift to an untrained team shows disregard towards health and safety. Previous experience of worker C was not properly assessed or verified, which a morally unacceptable approach to health and safety. अब इतना हाई रिस्क जॉब ऐसे वर्कर को प्रोवाइड कर देना जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी ना हो, ना ही वो सीजर लिफ्ट को इस्तेमाल करना जानते थे, ये भी मॉरली और लीगली फाइनेंशियली, हाँ ये वैसे लीगली आता है इसमें, इन्होंने इसको फाइनेंस लीगल ज्यादा बनता है क्योंकि ट्रेनिंग देना लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है। The owner did not own his responsibilities of providing safe workplace and equipment rather than the blame worker C for accident, which is unethical. ब्लेम कल्चर अलबत्ता ये नेगेटिव है, मॉरली तौर पर ब्लेम नहीं करना चाहिए था। Instead of focusing on worker C health and safety, securing the area, conducting investigation, the owner choose to complete the task. बजाय इसके reflecting his moral failures regarding health and safety. अब इसमें यह है कि उसने क्या किया, 10वां पॉइंट जो यहाँ दिया जा रहा है, देखें ये तो खैर पेपर राइटर की जो है ना वो इसमें ओपिनियन है। बहरहाल इसमें उसने यही चीज दी है कि जो वहां पर हेल्थ अपना ये जो ओनर है कंपनी का, उसने बस इसी चीज पे ही ज्यादा जोर दिया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पर उसका कोई फोकस नहीं है, और ना ही उसने हादसे के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, ना इन्वेस्टिगेशन किया, ना एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, ना कोई उसने एविडेंस लेने की बात की, बल्कि बस उसने बंदे को भेजा वेयर हाउस के वर्कर को, जाओ भाई वहां से जो है ना वो इक्विपमेंट हटा लो, और काम शुरू करवा दिया। ना ही उन लोगों का ख्याल किया जो जिनका हादसा हुआ था। तो ये भी मॉरली क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया। तो कल जो है ना हम फिर आगे चलेंगे, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो एक और सिनेरियो डिस्कस कर लें, अभी टाइम है आपका। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, ठीक है, नहीं अभी टाइम है बच्चे। इमरजेंसी अरेंजमेंट आपने वो पढ़ने कम दिया है ना, जो स्टडी था ना वो कम हुआ है, वो ज्यादा होना चाहिए था। अच्छा, इसमें एक और चीज आ रही है, ये कौन सा है, इमरजेंसी अरेंजमेंट टास्क 3 है। टास्क 3 को आप पहले उसका टास्क देख लें, क्वेश्चन देख लें। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, कमेंट ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी अरेंजमेंट्स एट किचन क्राफ्ट। किचन क्राफ्ट में आपको ये देखना है कि इमरजेंसी के जो इकदाम हैं क्या नहीं किए गए थे, उसमें नेगेटिव क्या चीजें थी जो होनी चाहिए थी और नहीं हुई। ठीक है। योर आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली। अब इसने तमाम का तमाम आपने कहां से लेना है, ये सिनेरियो से ही लेना है। ठीक है। तो सिनेरियो के मुताबिक इसमें जो उसने डिस्कस की है चीज वो ये है कि वर्कर सी वाज नॉट गिवन एन any emergency response because the first aider were not available. Leaving injured workers without on-site first aid can increase the risk of worsened results. यहाँ पर यह है कि जब उस बंदे का हादसा हो गया तो उसको पहली बात तो यह है कोई भी फर्स्ट एडर नहीं था जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता।
یہ وہاں کی سب سے بڑی ہی نیگلیجنسی ہے، یا یوں کہیں کہ نیگیٹو ہے اس سائٹ کے حوالے سے ایمرجنسی. کیونکہ جب بھی کہیں ایمرجنسی ہوتی ہے تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی وکٹم کو کیا دیا جاتا ہے؟ فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. لیکن وہاں پر فرسٹ ایڈر ہی موجود نہیں تھا. دوسرا, there is an absence of a well-structured emergency response. Worker C was not properly handled after the accident, and worker B had to take an independent decision to take him to the hospital. اب وہاں پر نہ تو کوئی وہیکل تھی نہ کچھ ایسی چیز تھی. وہیکل ہونا چاہیے تھا, کوئی ایمبولینس وغیرہ ہوتی ہے. یہاں پر انہوں نے کچھ اور ڈسکس کیا, لیکن میرے مائنڈ میں کچھ اور چیز آ رہی ہے. وہاں پر وہیکل کی اویلیبلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, ورکر جو بی تھا مطلب وہ یہی کچھ کر سکتا تھا کہ اس نے اس کو ایکسیڈنٹ والی جگہ سے ایک روم میں لے آیا, وہاں آ کے اس کو بٹھایا. اگر اس کے پاس کوئی اسٹریچر ہوتا, کوئی فرسٹ ایڈ روم ہوتا تو ہو سکتا ہے وہاں آ کے اس کو بٹھا دیتا. لیکن ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی, وہیکل نہیں تھی جس کے ذریعے سے اس کو فوری طور پر ہاسپٹلائز کیا جاتا. تھرڈ آتا ہے the owner did not report, record or investigate the accident. باقی یہ جو ہے جو اونر ہے, میننگ دیٹ دیر آر نو پراپر ایمرجنسی ریسپانس ان کچن کرافٹ. کچن جو کرافٹ تھا, کچن کرافٹ آرگنائزیشن ہے, اس میں کوئی بھی ایسے ارینجمنٹس نہیں تھے کہ بندہ یہ کہے کہ یار یہ کوئی رسپانس پرووائڈ کریں گے, کوئی حادثہ ہوا ہے تو کوئی انویسٹیگیشن ہوگی یا کچھ اس طرح سے اقدامات جن کے کریکٹیو ایکشن کیا جائے گا. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کریکٹیو ایکشن بھی تو کیا جاتا ہے نا, وہ بھی نہیں کیا گیا اس معاملے میں. فورتھ آ جاتا ہے the accident had nearly injured a pedestrian, reflecting that no warning signs or signboards were placed near the work site, which is testament to the poor emergency arrangements at the workplace. اب یہ ہے کہ وہاں جو کام ہو رہا تھا, جب وہ بندہ گرا ہے تو ایک پیڈسٹرین کے بالکل ہی قریب گرا ہے. وہ نیرولی مسڈ پیڈسٹرین جو تھا, وہ جو گرا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایریا میں آیا ہوا تھا, کام کے ایریا میں. اگر وہ جو کام کا ایریا ہے جہاں پر اکوپمنٹ لگایا گیا تھا اس کے ساتھ پراپر ایک سائن بورڈ لگایا گیا ہوتا, اس ایریا کو اگر بیریکیڈ کیا گیا ہوتا, تو پھر یہ واقعہ جو پیدل لوگ ہیں, پیڈسٹرین جو اس ایریا میں آئے تھے, وہ نہ آتے. ظاہر ایریا کو اگر بیریکیڈ کیا ہوتا تو آؤٹ سائڈر وہاں پر نہ آتے, اور آؤٹ سائڈر اگر نہ آتے تو اس کے ساتھ یہ نیئر مسٹری پیش نہ آتا. سر اگر ایسا سوال آیا ہو کہ اگر آپ ورکر بی کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر دیکھیں ورکر بی کی جگہ ہوتے تو بھی سمپل یہی ہے کہ آپ اس بندے کو وہاں سے اٹھاتے, ریسکیو کرتے, ایک سیف پلیس پر لے جاتے, کیونکہ وہ تو روڈ کے اوپر گرا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک سیف پلیس پر ہی رکھنا ہے, یہ تو نہ ہو کہ روڈ کے درمیان میں پڑا رہا ہے. پہلا سٹیپ تو آپ کو یہ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کو آپ نے فرسٹ ایڈ دینی ہے. پھر اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے ایمرجنسی ہیلپ لائن کو کال کرنا ہے. جو بھی سروس 111 ہے, 22 ہے, جو بھی آپ نے اس کو کال کرنا ہے. سروس آ جائے گی تو آپ اس کو ہاسپٹلائز کریں گے, ٹریٹمنٹ کروائیں گے. اس طرح سوال وہ کرتے ہیں کہ آپ ورکر ہے وہاں کے اور وہاں پہ ہیلتھ اور سیفٹی کا ایک مینجمنٹ نہیں ہے, پھر آپ وہاں سے کام کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ بھائی ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہاں کا کلچر نیگیٹو ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر سیفٹی کو پروموٹ کریں, آپ آئیں اور ہمارے اس پروجیکٹ پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پروموٹ کریں, تو آپ کو تو رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ آپ کو ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے جس میں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے, اور آپ اس میں سیکھتے بھی ہیں, اس میں آپ امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں, تو آپ کو تو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے. اگر آپ یہ چیلنج قبول نہیں کرتے ہیں تو اٹ مینز یو آر ناٹ اے پروفیشنل مین, پھر تو آپ حالات سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ہاں, اب آگے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ جب پہنچ جائیں گے سائٹ پر, پھر اگلا سوال بنتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, مینجمنٹ کا آپ کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے, وہ ایک الگ سین ہے نا. پھر تو آپ کیا کریں گے اگر مینجمنٹ کا آپ کے ساتھ کوآپریٹ اچھا نہیں ہے؟ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے وہاں سے, ہم تو میدان نہیں چھوڑیں گے, ہم تو ہر حال میں وہاں پرفارم کریں گے. ہمارے پاس جو اختیار ہیں لکھا گیا ہے پالیسی میں کہ ہم کسی کو وارننگ لیٹر دے سکتے ہیں, کسی کی ہم ویجز ریجیکٹ کروا سکتے ہیں, لیکن یہ سٹیپ بعد کی بات ہے. پہلے ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں,
लोगों का हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्टेप तो ये होता है। जब इन तमाम चीजों के बावजूद हम नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम इस तरफ जाते हैं इन्फोर्समेंट की तरफ कि किसी के ऊपर हमने क्या एक्शन करना है, वो बाद की स्टेज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है द ओनर आर्गुड विद वर्कर्स बी ओवर द मैटर ऑफ कैरिंग वर्कर सी टू द हॉस्पिटल reflecting a disregard for workers' health and safety on behalf of the owner resumed the wall preparation task। यार ये आपका इमरजेंसी अरेंजमेंट का सवाल बहुत ज्यादा गलत है, आधा ठीक है, क्योंकि उसने इमरजेंसी अरेंजमेंट्स जो थे ना वो उसने इसमें ज्यादा शेयर नहीं किए हैं, ये चीजें होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ट्रेनिंग नहीं है लोगों को रिस्पांस की, लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं लिखा गया। यहाँ पर एक और चीज आती है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, कल मैं ले आऊंगा, एक मेरे पास और पड़ा है कि लोगों को इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग नहीं है, इमरजेंसी के इक्विपमेंट नहीं है, व्हीकल वगैरह, ठीक है। और इमरजेंसी के हवाले से वहां पर कोई प्रॉपर एक प्रोसीजर में नहीं बताया गया, लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया, ये चीज इसमें शामिल करने की जरूरत है। ये वाली चीजें उसने फिर रिपीट कर दी हैं, 307 दिए हैं ना उसने, इसमें से आपके तकरीबन 3 ठीक आ रहे हैं मेरे ख्याल में। कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर का है ना, तो यूं समझे ये आधा ठीक है, ठीक है ना। मतलब मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूं, लेकिन मेरी नाकिस अकल के मुताबिक ये आधा ठीक है आपका, आधा इसमें गलत है, ठीक है ना। कल मैं ले आऊंगा दूसरा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका जो नॉलेज है वो ज्यादा इनहेंस हो। इंश्योरेंस का सर डिस्कस करें, उस पर बिल्कुल समझ नहीं है। वो तो बुक से कर लेते हैं ना, जरूरत नहीं यहाँ से करें हम। अब यहाँ वाला चाहते हैं, नहीं वो तो हम बुक से भी कर लेते हैं, चले मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। इधर देखें ना, ये देखें टास्क 4 है ना, पॉसिबल अनइंश्योर्ड कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये आप देख रहे हैं कि वो कहता है पॉसिबल अनइंश्योर्ड कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, किचन क्राफ्ट इंश्योरेंस ओनली कवर द फॉलोइंग कॉस्ट। किचन क्राफ्ट इंश्योरेंस ओनली कवर द फॉलोइंग कॉस्ट। ये सिर्फ उसमें क्या हो सकता है, वेयर हाउस इक्विपमेंट रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर इक्विपमेंट वगैरह डैमेज हो जाता है वेयर हाउस का, तो उसकी रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग वो भी क्या है, इंश्योर्ड है। उसके बाद है वेयर हाउस स्टॉक, अगर जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो जल जाता है, खराब हो जाता है, वो भी क्या है, इंश्योर्ड है। पर्सनल इंजरी कंपेंसेशन, बंदे को जो कोई इंजरी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो भी क्या है, इंश्योर्ड है। फिर आता है सिविल क्लेम टूवर्ड्स, अगर कोई वर्कर सिविल क्लेम करता है उनके ऊपर कोई इस तरह के इश्यूज है, वो भी कंपनी को मिल सकता है, इंश्योर्ड है। फिर है मेडिकल कॉस्ट, मेडिकल का ट्रीटमेंट का जितना इलाज होता है वो भी। अब आते हैं आगे, वो क्या पूछता है, वो कहता है व्हाट वुड द पॉसिबल अनइंश्योर्ड कॉस्ट बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से अनइंश्योर्ड कॉस्ट कौन सी होगी। अब अनइंश्योर्ड कॉस्ट आपको मैं यहां से दे देता हूं, इसको छोड़ें आप सिनेरियो को, ठीक है ना। ये फिर मैं आपको बुक से दे देता हूं अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ये देखें आप, आई जो कहाँ है बुक, किधर है ये है ना, हाँ ये मैं दे देता हूं आपको यहाँ से बुक से, अनइंश्योर्ड कॉस्ट यहाँ से आप देख लें। देखें आप याद रखना है, एग्जाम देना है तो आप बुक से मत हटें। आपको मेन हिंट्स हेडिंग बुक से मिलती है, डिटेल आपको दूसरे सोर्सेज से आप ले सकते हैं। हाँ 90% आपका जो पेपर है वो बुक से ही होता है, 90% आपको बता रहा हूं मैं। ये होता है, देखिए ना अनइंश्योर्ड कॉस्ट ये है, लिखिए आप बस, सिंपल बात है। प्रोडक्शन डिलेज आर डाउन टाइम, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट, sick pay for injured workers, overtime to make up for lost production, hiring and training new employees, loss of business reputation। कितने पॉइंट है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। कितने नंबर का सवाल है, 12 नंबर का। अब आगे आप चले जाएं साइट पर, गूगल पर क्लिक करें, एग्जांपल्स ऑफ अनइंश्योर्ड कॉस्ट, आपको लिख दें, बेशक 10 लिख दें, 20 लिख दें, आपकी आ जाएंगी। बाकी वहां से ले लें आप,
डिटेल इनकी वहीं से ले लें आप, हिंट्स आपको यहाँ मिल गया है, हेडिंग आपको मिल गई है। तो यही तो देखें, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। अगर आप जब हमारा पेपर हुआ था ना, तो हमारा पेपर था एग्जामिनेशन हॉल में, 2019 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमसे ये पूछा जाता था, हम इतना ही सवाल उठा के लिख देते थे तो नंबर मिल जाते थे। अब वहां उस वक्त ये नहीं था कि आपके इतने 1000 वर्ड होने चाहिए, अब है कि आपको 3000 वर्ड पूरा करना है। तो 3000 वर्ड पूरा करने के लिए आपके पास उन्होंने आपको खुली छूट दे दी है, बुक से भी ले लो, आप किसी साइट से भी उठा लो, लेकिन आपको रेफरेंस देना होगा। बाद में क्या है सर, जो गूगल से दे तो उस पे जरा जमा नो नहीं आता, कॉपी पेस्ट ना करें ना। अब वहां से साइट पे आपने देखा, देखकर आप क्या करते हैं, उसको अपने पास लिखें, अपने अंदाज में लिख के इसे टाइप करें, बस सिंपल बात है। अब ये तो ना है कि सारी चीजें वैसी की वैसी उठा के डालते जाओ, वो गलत हो जाता है, वो प्लेजरिज्म में आता है। बाकी मटेरियल तो आपने कहीं ना कहीं से लेना है, इजाजत है उनकी तरफ से, वो कोई इशू नहीं है। सर पहले बता देते कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिंपल, बिल्कुल ये गलत है। हाँ, दो बंदे इकट्ठे बैठ के भी नहीं करेंगे, एक जैसा भी नहीं करेंगे, हर बंदा अपने तरीके से अलग अलग करेगा। मैं अभी 20-25 लोगों की भी तो रिपोर्ट चेक करता हूँ ना रोजाना का, ठीक है ना, क्लास में। तो सिंपल बात है, वहां क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि दो लड़के भी अगर एक जैसी रिपोर्ट बना लें तो मुझे पता चल जाता है। तो मैं कह देता हूँ, बच्चे तुमने उसकी नकल की है ना, सिंपल बात है, पता चल जाता है। अब एग्जामिनर जिसका एक्सपीरियंस होता है उनको तो हर चीज का पता चल जाता है। जो 40 साल से निबोश कर रहे हैं तो क्या उनको पता नहीं चलता? फिर इतना सॉफ्टवेयर सिस्टम आ गए हैं, वो देर ही लिख के डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। चले आप ये रीडिंग करें, बुक की रीडिंग करें या स्नैरी की रीडिंग करें।